all joints act as fulcrum. Now, to justify the statement and give some reasoning pattern question to the topic, last day you have experienced, indeed last week जो हमारी last आखिरी class conduct हुआ था on the topic, we have experienced the several types and patterns of joint throughout the human skeleton, thereby giving different degree of movements under uniaxial, biaxial as well as multi-axial category. Indeed, a joint itself is the weakest part, but though it is responsible to actually offer what we call direction, dimension to every type of force generated by muscle, thereby making the movement meaningful for the body. Indeed, the chapter movement where we are going to deal the two systems, muscular system followed by skeleton system. हालांकि एक रेगुलर सीक्वेंस में आपको पहले स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया गया विद द कनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स क्या होते हैं. तो वो सारे एस्पेक्ट्स लास्ट अराउंड 10 डेज आपने जो एक्सपीरियंस किया एंड सिग्निफिकेंटली कैसे स्केलेटन सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है. एंड फाइनली एज पर अवर कोर्स अगर हम बात करें, हमें ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में बात करनी है. सो द क्वेश्चन इज नाउ how to justify the statement. So I have to go literally to another aspect of science. If we consider any object, एक स्टोन ऐसा रखा हुआ है, आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, उस रॉड शेप स्ट्रक्चर को मैं लीवर मान लूं, एंड हेयर यू अप्लाई द सपोर्ट, that is F fulcrum, and here L is the load. लोड ऊपर की तरफ उठना है, बट उसका फोर्स mg से यहां लगेगा, और here is the effort E. सो इस प्रेजेंटेशन की एनालॉगी नेचर ने ह्यूमन बॉडी में कैसे बनाया. पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, इसी का एनालॉगी nature has constructed by a natural engineering inside the human body as a part of a skeleton system by giving rise to what we recognize as joints. So what is the analogy? अभी मैं क्वेश्चन पैटर्न पे आऊंगा, है ना. पहले कंटेंट्स देख लें. इन अ ह्यूमन बॉडी, the liver system made up of following components. Is respectively made up of following components. Force, direction or support. Force is by muscle, direction is by bone, and the support is by joints, where muscle will give rise to effort, the E factor. The bone is going to act as liver. यहां मैं स्मॉल एल लिख रहा हूं क्योंकि एल फॉर लोड यहां लिखा है, ठीक है. द लिवर and support joint is going to act as fulcrum. And point to be noted, body part is going to act as any organ, body part involving any organ is the load, oblique we could rather say it as resistance.
रेजिस्टेंस. सो पॉइंट टू बी नोटेड, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टू गिव एन फिनिशिंग लाइनअप टू द टॉपिक under the heading levers and biomechanics of skeleton system, where just to establish and justify the sentence of NCERT that how joint act as fulcrum, or due to that fulcrum the human body experience the presence of an arrangement what we recognize as called lever system, which itself is of three types. So position of three components in the middle. There are three components, that is the effort, fulcrum और load. लिवर तो एक डायरेक्शन देने के लिए है, लेकिन तीन कंपोनेंट्स हैं मेन जो डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ लिवर सिस्टम इन द बॉडी. दैट इज द पोजीशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स इन द मिडल डिसाइड्स टाइप ऑफ लिवरेज मैकेनिज्म. टाइप ऑफ मैकेनिज्म. First order lever, second order lever, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर को हम अलग से एक्सपीरियंस करेंगे, डिस्कस करेंगे. पहले हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर लीवर को कंपेयर करते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एग्जांपल, as usual, one of the joint you have experienced earlier, so human skull resting on, now this is an arbitrary presentation, resting on the vertebral column. So here the load is L, the body part. Here rather it could be called resistance R, है ना. हेड के वजन को ऊपर उठाना है थ्रू आउट द डे. And here the support is the fulcrum F, the joint over here, जिसको मैंने ये रेड कलर ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल से शो किया, F. And the effort E by the neck muscles, पीछे की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्ट करके लोड को ऊपर. तो एफर्ट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, लोड ऊपर जा रहा है, एंड द सपोर्ट इज टेकन इन मिडिल. तो इन तीनों कंपोनेंट्स में बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे इन एक कहानी की तरह, एक ड्रामेटिक, कि वेल अ पर्सन इज होल्डिंग द हेड थ्रू आउट द डे. ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं, लेट मी कंपेयर विद द प्रेजेंट डे. इस साल अगर क्वेश्चन पेपर बना है और उसमें डेंटल फॉर्मूला को एक ड्रामेटिक वे में पूछा गया है कि boy of year falana old has been admitted, had got an admission in the school and gone through a dental checkup, so which teeth were missing in the dental formula. अब इस बात को तो सीधा सीधा चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला पूछ के भी तो खत्म कर सकते थे. तो एक कहानी, मतलब ड्रामेटिक क्वेश्चन. तो एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ, जॉइंट्स, सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, उसमें क्या कैसे याद करना है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वी हैव एक्सपीरियंस, किसकी क्या कॉम्पोजिशन है, फिक्स जॉइंट, मतलब वी आर मेकिंग द क्वेश्चन पैटर्न, उसके अकॉर्डिंगली जब हम पढ़ रहे होते हैं, फाइनली उसका एक कंसेप्चुअल हिस्सा. और अचानक जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, वी कांट सेट आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना पंच लाइन दे दिया है, fulcrum, and you have to justify it that how joints act as fulcrum. और शीट में साफ साफ लिखा है, they are the weakest point and thereafter also play the role to resist यानी सामना करना, एनकाउंटर करना डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, लोड. दिन भर हमारे इस फ्रेमवर्क पे हिडनली, अननोइंगली प्रेशर्स पड़ते रहते हैं, शॉक पड़ते रहते हैं, मैकेनिकल शॉक्स, बट हमें एहसास नहीं होता. एंड वी spend our complete 24 hours every day. So yes, truly they are the weakest part, but being a fulcrum,
दे आर द सपोर्ट सिस्टम, एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम है वो। तो पूरा स्केलेटन सिस्टम दो चीजें देता है, सपोर्ट फॉलोड बाय डायरेक्शन, वेयर बोन असेंबल देमसेल्फ एज जॉइंट्स, थ्री टाइप्स, फिक्स्ड, इमूवेबल, है ना, स्लाइटली इमूवेबल एंड परफेक्ट जॉइंट, यस और नो। तो ऑल सच जॉइंट्स, और उन सारे में से कौन से जॉइंट एक्चुअल फेल्क्रम का काम करते हैं? सिनोवियल जॉइंट। विच जॉइंट? मैं आ रहा हूं इस कंसेप्ट पे, नोट ऑल सिनोवियल जॉइंट्स act as fulcrum. Now these are those fundamental questions. बहुत कुछ पढ़ लोगे आप, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हर चैप्टर हर टॉपिक की क्या है, बस वो आपको एट द एज ऑफ द डे क्लियर रहना चाहिए। तो लोड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, हेयर द होल बॉडी पार्ट, नाउ यू एक्सपीरियंस एंड कोलैटरली कंपेयर करें, मैंने लिखा तो है दैट विल बी एन ऑर्गन पार्ट ऑफ द बॉडी, and that is the complete brain holded and enclosed in skull head region अपने आप में body part है, acting as that resistance load, और उसको उठाकर, है ना, मीनिंगफुल मूवमेंट्स, अब आप यस जॉइंट करो, मूवमेंट करो, किस तरह के भी जेस्चर्स दो, और दिन भर उठा के चलना, ये भी तो एक फंक्शन है। और उसके लिए किया गया एफर्ट, लोअर यहाँ के कौन से मसल्स, इस साइड कौन से मसल्स होंगे? नेक मसल्स, they are creating that effort, downward load ऊपर। तो the conclusion is L F E या फिर R F E, मिडिल पोजीशन पे कौन सा फैक्टर आता है? इफ द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर, आंसर होगा फेल्क्रम। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर component F will be always, यानी fulcrum will be in the middle portion, या तो RFE या LFE। नेक्स्ट कंक्लूजन, लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड, सबसे कम एफर्ट चाहिए इस तरह के जॉइंट को। If the skeleton system exhibit first order liver throughout the body, that in that area to perform the work, least effort is required. That's the significance of first order liver. तो आज एक एप्लीकेटिव कॉम्पिटिटिव विंडो वाले क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव विंडो में देखिए क्या मेंशन कर रहे हैं, व्हाट आर द टू फैक्टर्स, एक है प्रेजेंस ऑफ, रिवीजन हो जाता है इससे, प्रेजेंस ऑफ साइनसेस, प्रेजेंस ऑफ, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। These are the two arrangements in the skeleton, in the skull region, to bear the load of skull. स्कल जो स्केलेटन सिस्टम का सबसे भारी हैवीएस्ट पार्ट होने के बावजूद भी हम उसको थ्रू आउट द डे 24 आवर्स और उसका मैक्सिमम टाइम, है ना, विदाउट मियर एनी एक्सपीरियंस ऑफ वियर एंड टियर और किसी भी तरह के फटीग को महसूस ना करते हुए, स्कल जैसे भारी स्केलेटन को, हिस्से को हम थ्रू आउट द डे कैसे होल्ड करके चलते हैं। द टू रीजंस आर प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज कॉल्ड साइनसेस, एवरीवन रिमेंबर, जो कि बायोन्सी देता है इन अ गिवन स्पेस सर को उठा के चलाने में, और फॉलोड बाय फर्स्ट ऑर्डर लीवर अरेंजमेंट जिसमें हम फेल्क्रम जॉइंट का सपोर्ट बीचों बीच लेते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन ये रॉड बोन लिवर को एग्जिबिट करता है, उसमें लोड एक तरफ होगा, फेल्क्रम बिल्कुल बीचों बीच होगा, एफर्ट नीचे की तरफ। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाओ और रिकॉग्नाइज द प्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिवर सिस्टम इन द बॉडी। बन गया क्वेश्चन। या फिर अभी मैं 3 सीक्वेंसेस ऐसे लिखूंगा, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, आप देख के बताइए कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट सेकंड ऑर्डर लीवर को शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। कुछ लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि एज सच एकदम दिमाग में आ नहीं रहा कि ये क्या है क्वेश्चन, बट जो पढ़ने वाले हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्केलेटन सिस्टम बेस्ड ऑन फेल्क्रम।
या फिर लिटरेचर, कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और कुछ ना लिखा हो, सिर्फ अभी अभी मैंने एक ड्रामेटिक क्वेश्चन बनाया आपको, ये पर्सन हैपेंस टू होल्ड डाउन थ्रू आउट द डे, अपने सर को उठा के चल पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइनसेस, एक कारण है, लेकिन वो फैक्टर नहीं लिखा है, कुछ और बातें लिखी है, मेन है लीवर सिस्टम पे क्वेश्चन था, तो सेकंड रीजन इज द आंसर। आ रही मेरी बात समझ में? हाउ टू जज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, क्वेश्चन देखकर समझना पड़ेगा। सबको ये लॉजिक क्लियर हुआ? और ये था कंक्लूजन, लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड। और कौन सा फैक्टर बीचों बीच ऑक्युपाई करता है पोजीशन? फैल्क्रम। जब फैल्क्रम बीच में हो, ऑर्डर ऑफ लीवर इज फर्स्ट ऑर्डर। या फिर ये तीन स्टेटमेंट्स, ऑल द अबव muscles are responsible for effort system of our leverage mechanism, bones act as the rod liver जिससे डायरेक्शन मिलेगा, और जॉइंट्स देगा सपोर्ट एक्टिंग एज फैल्क्रम। द नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर लीवर। सेकेंड ऑर्डर लीवर का प्रेजेंटेशन मैं यहां बना रहा हूं। The toe joint is going to act as fulcrum F. लोड, लोड बीच में आ जाता है, विच फैक्टर? L, लोड ऑफ द बॉडी, रेजिंग द बॉडी वेट है ना अपॉन द टो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। वेयर विच फैक्टर ऑफ द लिवरेज मैकेनिज्म्स होल्ड, बीच की पोजीशन देखिए आप, बीच में कौन आ रहा है? लोड। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ये गौर करने वाली बात है। एंड अगेन एफर्ट नीचे की तरफ बाय द काफ मसल्स, बाय द काफ मसल्स नीचे खींचते हैं और वो बॉडी वेट को ऊपर उठा रहे हैं। अगेन L, सॉरी F L E और F R E रेजिस्टेंस। और इसमें अब आप देखिए टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा, एफर्ट ज्यादा हो जाएगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क ज्यादा रहेगा, एफर्ट सबसे कम। आर यू गेटिंग द फैक्टर? दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑर्डर लीवर से जब शरीर काम लेता है, लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड, जिससे वर्क टाइम बढ़ जाता है। दिन भर 24 घंटे हम अपने हेड को पोजीशन पे लेके, यस ड्यूरिंग दैट ऑफ कोर्स हम एक कुछ समय के लिए थकावट आना, गर्दन झुका के बैठे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स द कंप्लीट रेस्ट टेकन बाय द बॉडी एज अ होल, बट वी रेगुलरली नॉट फील एनी एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल वी होल्ड अवर हेड, यस और नो? तो लीस्ट एफर्ट, टाइम वर्क ज्यादा, जबकि यहां पर ऑटोमेटिकली वो एफर्ट कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा और वर्क टाइम कम। आप कितने देर तक टो जॉइंट पे अपने शरीर के भार को उठा के रह सकते हैं? ज्यादा समय तक नहीं, बट कंपैरेटिवली जो है, तो बोलने का तरीका है, इसमें क्या होगा? रिजल्टेंट नोट, एफर्ट कंपैरेटिवली बिकम्स मोर। फर्स्ट ऑर्डर के कंपैरिजन में एफर्ट कंपैरेटिवली जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एंड लोड, रेजिस्टेंस, बॉडी पार्ट ऑक्युपाई द मिडिल पोजीशन।
थर्ड ऑर्डर लीवर। So the example of an elbow joint, third order lever. थर्ड ऑर्डर लीवर को समझने के लिए वी हैव टू गो टू द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। एनी पर्सन वांट टू परफॉर्म एनी सच मैकेनिज्म ऑफ वर्क जहां वो एक लोड, अब वो लोड कितना है और उसके रेशियो में उसके बॉडी डायमेंशंस कैसे होने चाहिए जिससे कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उस लोड को इफेक्टिवली एक तयशुदा डायमेंशन तक उठा सके, एंड दैट व्हाट वी कॉल बायोमैकेनिक्स। और जहां वो डिस्टर्ब होता है इक्विलिब्रियम, द पर्सन्स एक्सपीरियंसेस द डिसऑर्डर्स इन फॉर्म ऑफ स्प्रेन या स्ट्रेन। तो थर्ड ऑर्डर लीवर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो इतना कुछ पढ़ने के बाद सबसे पहले तीनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ द फैक्टर, फैल्क्रम बीच में होगा फर्स्ट ऑर्डर, लोड बीच में होगा सेकंड ऑर्डर, थर्ड में अभी पता चलेगा बचा कौन सा फैक्टर, एफर्ट, कि एफर्ट बीच में और बाकी दोनों कंपोनेंट्स वो है थर्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एफर्ट बीच में रह के उसको इफेक्टिवली ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन द थर्ड arrangement of lever mechanism, the effort will be the maximum, effort will be the, so what is the correct sequence of effort in the given presentation? तो वही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में सबसे ज्यादा एफर्ट, गलत, उससे ज्यादा ऐसा करके दिखाएंगे वो ऑप्शन गलत हो। सबको आ रहा है समझ में? या तीनों में इक्वल एफर्ट, फिर भी गलत। ऑप्शंस बनाओ ना, सबको आ रही मेरी बात समझ में? कोई भी टॉपिक पढ़ो, पढ़ते से मैं आपको क्या कहता हूं, यू शुड बी एबल टू डिजाइन द क्वेश्चन। कुछ हद तक 50-60% तक आपके अंदर वो एबिलिटी आ जानी चाहिए, 40% रेस्ट थ्रू प्रैक्टिसेस, कोई बुक देखकर और टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि इफेक्टिवली आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। एवरीवन, तो एक जरा सा मुद्दा था एनसीईआरटी का एंड लाइक फैल्क्रम, लेकिन वो फैल्क्रम खुद तीन तरह के कंडीशंस क्रिएट करता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है? यहां तो मैंने कुछ इक्विलिब्रियम की बात नहीं कही, यहां तो मैंने बात नहीं कही। व्हेन द एफर्ट ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन बिटवीन लोड एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, लोड एंड फैल्क्रम, then the third order lever come into existence, and at that point effort is maximum, effort is least, most and maximum, least, most and, आ रहा है सबको समझ में? मतलब आज के वजह सब ऐसे याद होना चाहिए और ये कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल। तो लेट मी प्रूव दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल let me first of all give the position। ये रहा जॉइंट यानी F, उस ट्रायंगल को मैंने यहां बनाया है, क्लियर? और वहां से लेके मसल्स यहां ऐसा पोजीशन है, ये रहा E, एफर्ट। और वो तय कैसे होता है डिस्टेंस, कि मसल्स के दो पोजीशन होते हैं, ये इंसर्शन है, ये सॉरी ये ओरिजिन है और ये इंसर्शन है, यानी ये इमोबाइल पार्ट है और ये मोबाइल पार्ट। ये सब हम मस्कुलर टिश्यू में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिनॉप्सिस लिखवा के मसल सबसे 15-20 मिनट बाद ही चालू हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बट बिफोर कमिंग टू दैट टॉपिक, अभी अभी आपने कुछ हफ्ते पहले एक्सपीरियंस किया अ यूनिक सिस्टम टू ऑफर सपोर्ट, डायरेक्शन टू द मूवमेंट, टू मेक इट मीनिंगफुल, और वो सारी फंडामेंटल बातें।
लेकिन उसको एक्चुअली फिजियोलॉजिकली कौन और कैसे साबित होता है, मतलब वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, बाय प्रेजेंस ऑफ दिस लिवरेज मैकेनिज्म विच जनरेट एंड डिसाइड्स द बायोमैकेनिक्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। एंड द ऑल ऑनर गोज टू द जॉइंट्स, जो खुद बहुत कमजोर कड़ी होने के बाद भी फैल्क्रम की तरह इतना कुछ हमें ऑफर करता है ना। फ्रॉम द गुड, बेटर एंड बेस्ट, क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा एफर्ट चाहिए लेकिन ये बेस्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड, गुड, बेटर, बेस्ट। क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा लिवरेज मैकेनिज्म कौन से टाइप का है, आंसर होगा ये हर चैप्टर में कंसेप्ट है। जब आप मसल्स पढ़ोगे, एट लास्ट वी विल गोइंग टू कंक्लूड व्हाट, रेड एंड व्हाइट मसल्स। रेड एंड, कौन ज्यादा बेहतर है, दोनों ही बेहतर है अलग अलग कंडीशन में। साइनेप्सिस पढ़ोगे, साइनेप्सिस दो तरह के होते हैं, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल। सबसे बेहतर कौन है, इलेक्ट्रिकल, लेकिन शरीर में ज्यादातर साइनेप्सिस कैसे हैं, केमिकल। क्या कारण है, हर चैप्टर्स के रीजनिंग पार्ट वाले क्वेश्चन। बाकी तो वो क्या है, कैसे बना है, कैसे काम करता है, वो तो पढ़ेंगे, दैट्स द लिटरेचर ऑफ द टॉपिक। वैसे ही इस टॉपिक में अभी भी आपके सामने 3 लेवर मैकेनिज्म आया है, उसमें गौर करने वाली बात कि ये सबसे ज्यादा एफर्ट कंज्यूम करने के बाद भी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि शरीर इससे सबसे ज्यादा काम ले पाता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉडी की कुछ ही एरियाज है जिनसे हमें दिन भर थ्रू आउट, और बाकी मैक्सिमम काम जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर अ वाइल, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को कितने देर तक उठा के ऐसे चलना है हमें, परफॉर्म इट वाइल, सडन परफॉर्म करते हैं, भले ही ताकत ज्यादा लग जाए लेकिन वो इफेक्टिवली इक्विलिब्रियम के साथ परफॉर्म हो। इफेक्टिवली, व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम, उसी को डिसाइड कर पाता है थर्ड ऑर्डर लिवर मैकेनिज्म, जिसमें फेल्क्रम ने अपने आप को एक कोने में रखा। एंड सो कॉल्ड, a person hold some load of around 5 kg, suppose 5 किलो वजन अपने हाथ पे रखा, डोंट गो ऑन दी साइज, कि सर ने क्या मजाक किया हमारे साथ इतना सा स्क्वायर बना के कह रहे 5 किलो, तो हो सकता है इतना सा वाट 5 किलो का, और रुई इतना रखा 5 किलो, बात एक ही है। अरे यस और नो, हाँ। तो सो कॉल्ड द लोड केप्ट एट अराउंड समथिंग 5 किलो L along the gravity। तो यहां दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक होता है पावर आर्म, क्या कहते हैं, पावर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन फेल्क्रम एंड द एफर्ट, यानी मसल्स जहां अटैच हो रहे हैं। आ रहा है सबको समझ में, और फेल्क्रम से लेके लोड तक का ये जो है, दैट्स योर फंक्शनल आर्म। तो थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम में ये देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति में जो ये रेशियो है बिटवीन पावर आर्म एंड फंक्शनल आर्म, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस, या चलिए और कुछ लेते हैं थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर सपोज। तो रेशियो हमें लाना है ना 5, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब लिगामेंट्स और इसके बीच का डिस्टेंस। तो रेशियो वाइज फंक्शनल आर्म जो है 7 गुना। नाउ दिस इज द रिसर्च रेशियो, मतलब ये रेशियो कैसे आता है, रिसर्च करके, अलग अलग लोगों के हाइट हेल्थ अलग अलग होते हैं, मेरी बात है नहीं समझ में, डायमेंशन तो जो भी हो, शॉर्ट हाइटेड हो, लॉन्ग हाइटेड हो, जिसके जितने डायमेंशन हो, उसके शरीर में अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि पावर आर्म और फंक्शनल आर्म के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1:7 का रेशियो। तो 5 सेंटीमीटर अगर ये है, तो हाथ की कुल लंबाई, ये लीवर कितना लंबा लोड तक जाना चाहिए, 35 सेंटीमीटर। हालांकि प्रैक्टिकली कम ज्यादा होता है, ये तो मैं एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं, रेंज होता है ना, हर किसी में ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंगली तो आपको दिखेगा काफी मस्कुलर शरीर, लेकिन उठाने जाएगा तो उठा नहीं पाएगा वो, और कोई एक होगा ठीक ठाक है लेकिन एफर्ट जनरेट कर लेगा वो इक्विलिब्रियम। मेरी बात आ रही है समझ में, दैट्स कॉल्ड मसल टोनिसिटी, दैट इज कॉल्ड, सब रिलेटेड बातें आ रहे हैं इस बात पे। तो पावर आर्म, फंक्शनल आर्म, तो क्या देखा गया, थर्ड ऑर्डर लीवर का सीक्वेंस तो तुम्हें समझ में आ गया। पहले मैं कंसेप्ट्स यहां पर एक तरफ ले आऊं, एंड एल या एफ ई आर,
जिसमें एफर्ट बीच में है। अब क्या होना है, ठीक है, ये एक रेशियो है। सपोज ये व्यक्ति उस वजन को उठाता है, चेंज इन पोजीशन, तो यहां पर जो डिस्टेंस है कॉन्ट्रैक्शन का 1 सेंटीमीटर, कितना, तो उसी रेशियो से यहां कितना डिस्टेंस होगा, 7 सेंटीमीटर। रेशियो शुड बी मेंटेन। इसने उठाया ऐसा। नाउ द क्वेश्चन इज, है ना, 5 किलो का वजन, वो फोर्स है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल 7 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू, अरे F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आया सबको समझ में? तो अब यहां का कितना पावर आर्म है ना ये, तो यहां कितना वैल्यू होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इज 1, डिस्टेंस ट्रेवल इज 1 सेंटीमीटर, यस और नो, तो आंसर होगा 35, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। यानी मसल्स कितना पावर जनरेट करेगा, 35 केजी, और 35 केजी 5 किलो का कितना गुना है, 7 गुना। दिस इज द, सबको आ रहा है समझ में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का इक्विलिब्रियम 35। तो वॉट एवर द डायमेंशन ऑफ द पर्सन, एक व्यक्ति का हाइट हेल्थ कैसा भी हो, पावर आर्म और फंक्शनल आर्म के बीच का रेशियो कितना होता है, 1:7। तो उसके मसल्स की फिर डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, आ रही मेरी बात समझ में सबको, है ना, टू होल्ड दिस लोड अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि उसका वजन अलोंग mg जो है 5 किलो जा रहा है, उसको उठाने के लिए एक्चुअली उसको फोर्स यहां कितना जनरेट करना होगा, जस्ट उसका 7 गुना। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? तो दिस इज थर्ड ऑर्डर लीवर। एफर्ट देखिए आप, एफर्ट इज इन फॉर्म ऑफ दैट फोर्स जो मसल्स को लगाना पड़ेगा, तब जाके इतना फोर्स डेवलप होगा, तब ये इक्विलिब्रियम आएगा, तब ये उठेगा यहां तक इस पोजीशन पे। किसी को कोई डाउट? क्लियर? सो थर्ड ऑर्डर लीवर, एफर्ट इज मैक्सिमम, एफर्ट इज एंड वन ऑफ द मैक्सिमम लिवरेज सिस्टम ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द 3। तो ये था आपका लिवर सिस्टम, 3 प्रोमिनेंट एग्जांपल। इन्हीं एग्जांपल्स के साथ अक्सर क्वेश्चन आता है। ऐसे तो फिर और सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये है जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी, कौन से जॉइंट्स अभी लिखा था, सिनोवियल जॉइंट्स, सबको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन सबको कैटेगराइज करके याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ दैट्स द टाइम वेस्टेज। आप ये 3 प्रोमिनेंट एग्जांपल जो 3 लिवर मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, फॉलोड बाय तीनों में क्या डिफरेंस है। Competitive window, the sequence of increasing order, the sequence of increasing order of effort in liver system, आया सबको समझ में? सही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इसमें सबसे कम एफर्ट, उससे ज्यादा इसमें, और उससे सबसे ज्यादा इसमें। जस्ट ऑपोजिट, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा काम इससे लिया जाता है, फिर इससे, फिर इससे। So that's the conclusion of the topic, biomechanics of skeleton system। 4 पैटर्न क्वेश्चन,
कि तीनों लिवर सिस्टम को डिसाइड कौन करता है? पोजीशन ऑफ द फैक्टर इन द मिडिल। बीच में अगर फेल्क्रम है फर्स्ट ऑर्डर, बीच में अगर आपका लोड यानी बॉडी वेट है, रेजिस्टेंस है तो सेकंड ऑर्डर, और एफर्ट बीच में है तो थर्ड ऑर्डर। सबसे लीस्ट क्या बोलते हैं एफर्ट, सबसे मैक्सिमम एफर्ट लिया जाता है। सारे सिनोवियल जॉइंट्स लिवरेज मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। ओनली सिनोवियल जॉइंट्स विद जॉइंट्स। नाउ हालांकि आपको कंटेंट्स मिल चुके हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन, लेकिन 4 डिसऑर्डर्स को मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, और जिस पैटर्न से भी मैं लिखवा दूंगा वही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम नहीं, सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के हम डिसऑर्डर्स देखने जा रहे हैं। बना लिया सबने ये? ऑस्टोमेलेशिया एंड रिकेट्स, है ना। बेसिक डिफरेंस क्या है? सिम्टम्स तो एक ही है, बट वेयर द डिफरेंस लाइज एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इटसेल्फ ऑफ 3 टाइप्स। तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, यू कैन गो थ्रू द कंटेंट्स, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं, बट फाइनली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय बारीकी से कुछ डिफरेंस के साथ ऑप्शंस हो, और मोस्ट प्रोबेबल एनसीईआरटी में क्या लिखा, और फाइनली हाउ टू जज व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर। उसी बात को मैं हाईलाइट करते हुए यहां मैं नोट्स लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑस्टोमेलेशिया एंड रिकेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी, क्या एनामोली, क्या खराबी आती है शरीर में? किसी भी हड्डी का कैल्सिफाई ना हो पाना, बोन इज नॉट एबल टू, है ना, अवेल टू कैल्सिफाई, अपने आप को समय के साथ समय समय पे रिप्लेस करके कैल्सिफाई कर पाना, हार्डनेस को मेंटेन ना कर पाना। ड्यू टू, गौर करिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 ओनली। हालांकि इनडायरेक्टली कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि अब आपको ये बात समझ में आता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कैल्शियम लेवल समझाया था। क्या समझाया था? नाउ आर यू गेटिंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन? कहां हमने बोन्स पढ़ा, कार्टिलेजेस पढ़े, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, बट बीच में से डिफरेंट स्ट्रोक देते हुए मैंने एंडोक्राइन सिस्टम से एक टॉपिक उठाया, थायराइड एंड पैराथायराइड। कैसे वो दोनों मिलकर बॉडी में दे रेगुलेट, दे कीप अ चेक, क्लोज विजिलेंस, किस पर नजर बनाए रखते हैं? कैल्शियम लेवल थ्रू आउट 24 आवर्स, थ्रू आउट अवर लाइफ। एक ह्यूमन बॉडी में इतने कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं, उनमें से एक सिंपल सा एलिमेंट पर अपना कंट्रोल बनाए रखना, एंड दैट्स अ सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी। और जरा सा ऊपर नीचे हुआ हाइपर एंड हाइपो, हाइपर एंड which is going to disturb the calcium level both in the bone or in the matrix, in the blood or matrix of bone। तो कुछ इस तरह का उसमें आपने टेक्निकली 3 शब्द मेन सुने, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, रिसॉर्प्शन। कौन एंटागोनिस्टिक है, कौन सिनर्जिस्टिक है, कौन हाइपोकैल्सेमिक है, कौन हाइपरकैल्सेमिक है। नाउ दैट्स द फाइनल कंक्लूजन। वो सब बातें जो आपको बताई गई थी, लेट अस अप्लाई, क्योंकि अगर वो ढंग से काम कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड द बॉडी इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। जो अब हम डिसऑर्डर, यानी पहले हमने ऑर्डर पढ़ा, क्या पढ़ा, और अब हम डिसऑर्डर देख रहे हैं। सो लेट अस फॉलो इट। ऑस्टोमेलेशिया एंड रिकेट्स, दोनों में यही प्रॉब्लम होती है, और दोनों का कारण यही है। देखिएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस नेक्स्ट, उसमें कैल्शियम एंड विटामिन D3, इसमें सिर्फ क्या लिखा है?
if the problem occurs of inability and deficiency of vitamin D3 in childhood and until the age of 8 at most 10, पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि चाइल्डहुड होता क्या है, कौन से समय के बीच का चाइल्डहुड है. फ्रॉम द एज ऑफ सेकेंड ईयर, फ्रॉम द एज ऑफ द मोमेंट फीटस टेक बर्थ, अगले ही पल उसको न्यूबॉर्न कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टिल द फर्स्ट मंथ ऑफ द बर्थ. दूसरे मंथ से लेके साल भर तक के एज तक वो इन्फेंट क्या कहलाता है. और जैसे ही 12 बज गए, बर्थडे केक कट गया, हैप्पी बर्थडे ताली बज गई, अगले दिन से वो चाइल्ड है. अरे आ रहा है सबको समझ में? टिल द 8th ईयर ऑफ एज एग्जैक्टली. क्योंकि अंदर रह रहकर कौन सा हार्मोन हिचकोले बनाना बंद कर देता है? टर्बुलेंस, मेलाटोनिन. कौन सा हार्मोन? बाय द एज ऑफ 8 and most 9, pineal gland get degenerated by become calcifying sand body. yes or no? है ना. अचानक बाल्यकाल खत्म. स्टेज ऑफ जुवेनाइल फेस कैसे शुरू हो चुका होता है? मेंटली क्यूरस, मानसिक रूप से खूब ज्यादा जज्बाती और आसपास जिज्ञासा से भरा हुआ. अरे आ रहा है समझ में? क्योंकि मेलाटोनिन अपना असर खत्म कर चुका है और उसका असर खत्म होते से ही सो कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड अवेल्स द GnRH सिग्निफिकेंटली रिलीज होना चालू, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. अरे आया समझ में? एवरीथिंग इज आर इंटर रिलेटेड. तो समझो आप, चाइल्डहुड मतलब 8वें 9वें साल के एज तक. और जैसे ही वो 9वां साल लगेगा, वहां वो अपने लाइफ के जुवेनाइल फेस में होगा, हाई स्टेट ऑफ मेंटल क्यूरोसिटी, जो अगले 12 साल की उम्र तक वो जूझता रहेगा. और उस दौरान अगर उसको कुछ गलत समझाइश और अलग तरह के एक्सप्लेनेशन, तो वो उस तरह की डेवलप होगा. अरे आया समझ में? इसलिए उसको उस समय हैंडल करना ज्यादा जरूरी है. और हमें ज्यादा किसी और का नहीं, तुम अपनी दिनों को याद करो, किसी और का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है. ये क्यों, वो क्यों, पापा ये कौन, जाओ जाओ अंदर जाओ. पापा बस वही खेल हो गया. अरे आया समझ में? मतलब हाँ, मतलब आप उसको बच्चा समझ के. और बायोलॉजी क्या कह रहा है? जुवेनाइल फेस. कौन सा फेस? नियर टू प्रोग्रेसिंग टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टल चेंजेस, बदलाव का दौर, ट्रांजिशन 3 तरह का, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल. और उसी समय आप उसको मतलब नॉकआउट कर रहे हो हर बात पे, चुप इधर जाओ उधर, ऐसा बस. तो फिर अब वो भी फिर जैसी वो 13 साल में एंटर करता है, फर्स्ट टीनेजर बर्थडे, है ना, अ न्यू प्रॉब्लम अराइज इन दी लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस. मैं कोर्स के अंदर ही हूं मैं. अरे आया समझ में? आई एम नॉट आउट ऑफ कोर्स. अरे कुछ आया समझ में? यही है कोर्स. ह्यूमन हेल्थ डिजीज, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस. ठीक है ना. खतरनाक, वनरेबल एज, इट्स अ पीरियड एंड प्रोसेस, ऐसे ही कहा है ना. तो यस बिल्कुल सही बात है ना. दिल और दिमाग दो अलग अलग दिशा में, मेरा दिल ऐसा कहता है, दिमाग ऐसा कहता है. तो बस खेल हो गया उसके साथ. तो चाइल्डहुड में हम क्या कहेंगे? रिकेट्स. क्या कहेंगे? द प्रॉब्लम इफ अराइज विद इन द 9th ईयर ऑफ एज, वॉट एवर द रीजन, मेल न्यूट्रिशन. हालांकि यहां मेल न्यूट्रिशन शब्द गलत होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि विटामिन डी तो पुअर मैंस विटामिन है, अवेलेबल फ्रॉम दी सीबेशियस ग्लैंड, स्किन में सिंथेसाइज होता है. लेकिन देन ऑल्सो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में कमी है. कुल मिला के विटामिन डी नहीं मिल रहा है. वो तो आज सप्लीमेंटल फूड है. हम बच्चों को जो है ना, अपने बच्चे को दूध देने के लिए आप क्या करते हैं? दूध के साथ बॉर्नविटा देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे यस और नो? एक मदर दूसरे मदर से, यू हैव सीन द डिफरेंट एड्स, टेलीविजन एड्स. दूध देते हैं, नहीं कैल्शियम मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे मिलता है ना, दूध देते हैं तो कैल्शियम का दूध एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है? तो अब याद करो, लास्ट डे में समझा चुका हूं, कैल्शियम कौन एब्जॉर्ब कराता है? विटामिन. और फिर वहां से वो बोन में जाके सबमिट होगा, डिपॉजिट होगा. यस और नो? तो आज हम क्या हेल्थ सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं और मेडिकल साइंस क्या, उन सब बातों से हम नहीं कभी समझ पाएंगे. हमेशा बात को समझो आप, जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्थोडॉक्स है. प्रैक्टिकल चीजों के साथ ज्यादा कोरिलेट करने जाओगे तो आप एक्चुअल चीज को नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड आज मेडिकल साइंस क्या सपोर्ट करता है, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उनसे हम ना इन्फ्लुएंस होके प्रैक्टिकल लाइफ साइंस को समझे शरीर के साथ क्या होगा. तो सो कॉल्ड विटामिन D3 नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड स्टेज में रिकेट्स, नॉक नी सिंड्रोम. क्या सिंड्रोम कहते हैं? खासकर पैर की हड्डियों में जो कमजोरी आती है डीकैल्सिफिकेशन की वजह से,
आ रहा है सबको समझ में? फॉलोड बाय द नी बिकम्स ऐसे, या तो अंदर या बाहर की तरफ से, बो शेप्ड, धनुषाकार। कैसा हो जाएगा? मतलब पैर से मुड़ जाएंगे, बो शेप्ड। अच्छा, ये बच्चों में ही होगा, बड़ों में नहीं होगा। सेम प्रॉब्लम होगा लेकिन सिम्टम्स ये नहीं आएंगे चाइल्डहुड में, और यही प्रॉब्लम अगर बड़े होने के बाद हो, दैट द प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑस्टियो मलेशिया। मेन मुझे आपको ये लाइन याद कराना था कि सिर्फ विटामिन D3 की वजह से और कैल्सीफाई ना हो पाना, समय समय पे डीकैल्सीफाई होने के बाद कैल्सीफाई ना हो पाना। डीकैल्सीफाई तो होता रहता है क्योंकि ओल्ड मैट्रिक्स समय समय पे हटता है, तो न्यू मैट्रिक्स बनेगा। कैल्सिटोनिन कह रहा है मैं हूं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन विटामिन D3 साथ नहीं दे रहा। अब आया समझ में? क्योंकि कैल्सिटोनिन की हद, लिमिट कहां तक है? ब्लड से बोन तक लाने में। इंटेस्टाइन से तो कौन एब्जॉर्व कराता है? विटामिन D3। आर यू गेटिंग द लॉजिक? छोटी छोटी बातें, बस वन टाइम टच वाले टॉपिक्स हैं ये, अब दोबारा थोड़ी रोज रोज पढ़ोगे ये सब। तो चाइल्डहुड रिकेट्स ऐसा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वो कम उम्र में होता है, बोन्स बनने के उसमें है। जैसे जैसे वो शेप आएगा, कैल्सीफाई नहीं हो पाएगा, फिर मुड़ जाएगा, शरीर का वजन पड़ेगा दिन भर घूमते हुए, तो पैर वैसे शेप में। लेकिन एक हाइट हेल्थ गेन करने के बाद, जब अडल्ट 18 प्लस हो चुके हैं, उसके बाद सेम प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बॉडी इज नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, लाइफस्टाइल डिजीज हो जाता है। कैसा डिजीज है वो? ऑस्टोमेलेशिया इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल क्यों कहेंगे? रिलीजियसली इफेक्टेड डिजीज अमंग मुस्लिम्स वियरिंग दोज क्लोथ्स, ब्लैक क्लोथ्स, तो वो दिन भर घूमते हैं ऐसे, दे डजंट एक्सपोज देयर बॉडी पार्ट, जिससे स्किन में, तो लाइफस्टाइल डिजीज क्या हो जाएगा ये फिर? अगर कहानी बना के ऐसे क्वेश्चन पूछे, रिलीजियसली इन सम, है ना, वुमेन आर मोस्ट बीइंग अफेक्टेड विदाउट टेकिंग दैट कम्युनिटी नेम, एक एग्जांपल लेके ऐसा क्वेश्चन बन जाए, द अफेक्टेड प्रॉब्लम इज ऑफ बोन ऑस्टियो मलेशिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। अब आ रहा है सबको समझ में? टॉपिक एक रहता है, क्वेश्चन के लेवल चेंज हो जाते हैं, बस टॉपिक तो यही है, कोई ऐसा थोड़ी कि अलग से कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन उसको किस डिग्री से पढ़े, कहां तक अप्लाई करें, जिससे वो टेक्निकली सॉल्व हो। सबको अंतर आया समझ में? एवरीवन, कि दोनों बीमारियों के साइन, सिम्टम, कारण सब एक, एज वाइज और लाइफस्टाइल बन गया आगे चल के वो बीमारी। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लिखा हुआ है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल, लेकिन इस पॉइंट को मैं क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड मेनोपॉज के साथ पढ़ाता हूं। मेरी बात आ रही समझ में? मैं वहीं इसको जस्टिफाई करूंगा, लिख यहां भले ही दूंगा कि जिससे कल ऑप्शंस लिखे हो तो ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव टिक करने के लिए तुम तैयार हो। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट एस्ट्रोजन लेवल विद द इंक्रीजिंग एज नियर टू मेनोपॉज? और ऐसा क्या हो जाता है कि सिम्टम वाइज when the last menses happens to occur, तो कैसे ड्यू टू अदर सिम्टोमेटिक चेंजेस इन द बॉडी जो फीमेल एक्सपीरियंस करते हैं साल डेढ़ साल तक, टू एकोमोडेट एंड एडजस्ट विद दैट लास्ट हार्मोनल चेंज इन द लाइफ ऑफ द फीमेल। लास्ट, एक फीमेल परफेक्ट हेल्दी बॉडी के साथ अपने पूरे लाइफस्टाइल में 3 बार हार्मोनल एक्सपीरियंस चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। वन ड्यूरिंग द मेनार्की, द फर्स्ट मेंसेस, वन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सक्सेसिव प्रेगनेंसीज। बट मैं एक ही कंसीडर करूं प्रेगनेंसी के साथ कि वन दैट थ्रेशल एंड चेंज, थ्रश जो आता है, एंड एट लास्ट मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल का क्या संबंध है, मैं वहीं साबित करूंगा अंडर द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, व्हाइल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मेनोपॉज। लेकिन आज बस पॉइंट लिख दूंगा। लेट्स कम टू द बेसिक्स। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन नॉट एबल टू रिकैल्सिफाई। यहां कैल्सिफाई लिखा है, यहां क्या लिखा है? रिकैल्सिफाई ना हो पाना। द बोन नॉट एबल टू रिकैल्सिफाई। रीजंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस।
कैल्सिटोनिन कम और पीटीएच ज्यादा। देखो अब क्योंकि मैंने वो पढ़ा दिया है, ये तो देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए, अप्लाई कर लेना आना चाहिए। आ रहा है समझ में? देखिए, बोन नॉट एबल टू रिकैल्सिफाई ड्यू टू रीजन, पहला रीजन है ये हार्मोनल इंबैलेंस, एक कारण है। दोनों हार्मोन जिम्मेदार है बराबर सिंक्रोनाइजेशन के साथ, एंटागोनिस्टिकली तालमेल है, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करके। जबकि इसे इसे क्या करना चाहिए था, ज्यादा बनकर अपना असर दिखाते हुए कैल्सिफाई, और समय समय पे यह दोनों मिलके। लेकिन ड्वेल अटैक ऑफ द हार्मोन क्या हो गया, सी द डेवलपमेंट, कैल्सिटोनिन कम हो गया, तो जो ओल्ड मैट्रिक्स हटता गया उसमें दोबारा डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग? यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल सरेंडर, कौन सरेंडर कर देता है? बोले मेरा हार्मोन ही मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहा है, मैं क्यों एब्जॉर्ब करूं और काम करूं, ठीक है। और बचा कुचा जो कैल्शियम था भी, पीटीएच ज्यादा बनने की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा काम करता है। रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्ट क्या होगा वो तो एक ही आएगा। दूसरा कारण है मैल न्यूट्रिशन, जिसमें भले ही विटामिन डी3 हार्मोन की तरह काम करता है, लेकिन है तो एक तरह का विटामिन, यानी खाने के थ्रू, और इंडीड कह सकते हैं कि बॉडी में अवेलेबल हो रहा है एज अ न्यूट्रिएंट। तो विटामिन डी3 एंड कैल्शियम बोथ मिलकर डेफिशिएंसी। तो किसी में मेल न्यूट्रिशन है और किसी में, जिनमें मेल न्यूट्रिशन है उसे रिगेन किया जा सकता है, रीएस्टैब्लिश। लेकिन अगर हार्मोनल है तो दिक्कत है, फिर किसी तरह से मैनेज होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी रिजल्ट सिम्टम्स, पोर्स डेवलप। क्या डेवलप होते हैं? और उन पोर्स को कहते हैं हॉशिप्स लेकुने। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को। नाउ दैट्स द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन जिपमा, हॉशिप्स लेकुने क्या होते हैं? हॉशिप्स लेकुने, अब क्योंकि आपने वो डायग्राम देख रखा था, याद करिए, मैंने कंपाउंड बोन का जो एरिया दिखाया था, और वहां पर मैंने ऐसे स्कैटर्ड वे में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बनाए थे। यस, तो हमेशा ही इनका फैगोसाइटिक नेचर, बोन ईटिंग नेचर है, इन लोग अपना काम करते ही रहते हैं। तो हल्का सा जो है ना, इनके चारों ओर स्पेस बना ही रहता है। क्यों? ये शो करता है कि अपने चारों ओर मैट्रिक्स को हल्का हल्का खाते जा रहे हैं, स्लोली ईटिंग, जिससे ओल्ड मैट्रिक्स हटते जाए और नया मैट्रिक्स तो दोनों डायरेक्शन में बनता है। डिड यू रिमेंबर दैट? बाय डायरेक्शनल ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? तो ठीक है ये। नाउ दीज आर लेकुने, दीज आर कॉल्ड सिंपली लेकुने, होते ही हैं पोर्स। लेकिन अब ये जरूरत से ज्यादा बड़े हो गया, जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि आर यू गेटिंग द इम्बैलेंस एंड द डेफिशिएंसी द बोन इज एक्सपीरियंसिंग मेटाबॉलिकली। एवरीवन, आ रहा है सबको समझ में? तो अब ये जो पोर्स हैं यही लेकुने, हॉशिप्स लेकुने, और वो हॉशिप्स लेकुने ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है विच एक्ट एज पोर्स। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, susceptible to fractures, susceptible to, ऐसे व्यक्ति जो है फ्रैक्चर्स अक्सर इनमें होने के चांसेस हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आप लिखने जा रहे हैं, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां कंटिन्यूटी में लिखिएगा। मोस्टली लिम्ब बोन्स, होने के लिए तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लिम्ब बोन्स एंड स्पाइन बोन्स। कौन से बोन्स? जो सेंट्रम है, थिकेस्ट एरिया है ना, ये दो बोन सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टेड होते हैं, है ना। होने के लिए कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां? पूरे स्केलेटन में लिम्ब बोन्स और स्पाइन बोन्स, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के ईच वर्टिब्रे। राइट, खत्म हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, इतना याद रखना है। और एस्ट्रोजन वाला पॉइंट हम आगे देख लेंगे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनोपॉज के साथ, जो फीमेल्स में डोमिनेंट है, वन ऑफ द रीजन एज अ सिम्टम ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड। ऐसा लिखवाते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन, एफएसएच सबका रिलेशन है आपस में, तो अभी मैं उसमें उलझाना नहीं चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों को अगर वो साइकिल और कंसेप्ट्स
याद ना हो, पता ना हो तो आज उलझ जाओगे आप समझने में। यहां तक सबको आया समझ में? एवरीवन? और ये ऐसा है कि बस आज के बाद इसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे याद रखना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज सिंपली, मतलब आर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है, यही अपने आप में क्वेश्चन है। इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में सूजन आना। टिस, टिस आज के बाद ये याद रखिए, जहां ये टिस वर्ड लग जाए, यानी बॉडी के उस हिस्से में सूजन ड्यू टू एनी रीजन एक्स वाई जेड, तो आर्थराइटिस, आर्थरा, आर्थरा मतलब ही जॉइंट, जॉइंट में सूजन आना। लेकिन खुद आर्थराइटिस तीन कारणों से अलग अलग प्रोसेस है ना। एक्चुअली थ्रू आउट बॉडी 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं मेडिकली, विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड एज, और किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये है एक्चुअल ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया, मतलब कि वो कितना वनरेबल हो चुका है, वो कि ठीक होने की कुछ उम्मीद है कि नहीं, एंड सो ऑन। बट टेक्निकली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सेक ऑफ कन्वीनियंस वी स्टडी आर्थराइटिस अंडर 3 कैटेगरी। हाउ मेनी कैटेगरी? What they are? ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके मेन बात याद कराना है। और सबसे पहला स्टेटमेंट इसके बारे में देखिए क्या लिखा रहा हूं। ओ ए मोस्टली या यूजुअली अटैक, बॉडी में जॉइंट्स तो अलग अलग तरह के हैं। ओ ए यूजुअली अटैक लार्ज जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट्स। अब बॉडी में लार्ज जॉइंट्स, एक है हिप फॉलोड बाय नी, हिप जॉइंट और नी जॉइंट। इसके अलावा कौन? शोल्डर, शोल्डर जॉइंट। लेकिन ये लीस्ट रिपोर्टेड है मेडिकली, मेन तो ये दो। तो किसी भी अच्छे लिटरेचर वाली बुक्स में आपको इन दोनों जॉइंट्स एग्जांपल मिलेंगे कि जैसे आज पता चला ना आपको, मोस्टली लिम्ब बोन्स एंड स्पाइन बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस। थ्योरेटिकली तो कहीं भी अटैक करने के चांसेस है, सब समझ में आ रहा जैसा हमने पढ़ा, लेकिन मेडिकली ग्राउंड फैक्ट्स भी तो देखना पड़ेगा। और वैसे ही ओ ए जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ऑल आर एग्जांपल ऑफ विच जॉइंट? सिनोवियल जॉइंट्स। तो लेकिन मैंने सिनोवियल जॉइंट नहीं लिखवाया, क्योंकि सिनोवियल जॉइंट पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी असर डाल सकता है, और गाउटी आर्थराइटिस भी। कौन सा आर्थराइटिस? अभी बाकी जो दो बचे हैं। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन? ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली अटैक लार्ज जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट्स में ये तीन, तीन में से प्रोमिनेंटली ये दो, हिप एंड नी। तो लेट अस गो फॉर दैट। अब आप एक टेक्निकली क्या जानते हैं? सपोज दिस इज दी टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, फीमर बोन के कॉन्डिलर एंड और टीबिया का हेड रीजन, प्रॉक्सिमल एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कवर्ड बाय व्हाट? अब आ रहा है समझ में? कहां कौन सा स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तब जाके कोई टॉपिक समझ में आता है। तो जिस दिन हायलिन के आप समझा रहे थे और रिगार्डिंग सारे कोरलेटरल हम हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पढ़ रहे थे, हायलिन कैप पढ़ाना मेन उद्देश्य नहीं था। आज आपको पता होना चाहिए। तो एनी joint, synovial joint is characterized by presence of an articulating covering cap called hyaline cap, और उनके बीच जो मेम्ब्रेन है, now this is an arbitrary presentation, presynaptic, sorry, ये प्री सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनोवियल जो नीचे वाला, और द स्पेस एनक्लोज्ड कैविटी इज फिल्ड विद द सिलोवियन फ्लूइड। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ड्यू टू एजिंग इफेक्ट या फिर इंजुरी,
इसको वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहते हैं। वियर एंड टियर मतलब किसी तरह का चोट लग गया, किसी तरह का जर्क है ना, जिसमें डैमेज हुआ हो। तो ड्यू टू एजिंग इफेक्ट इसका कारण यही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बढ़ती उम्र के साथ या फिर किसी तरह की इंजरी हो गई हो। रिजल्टेंट क्या होगा? Try to understand. Hyaline cap disappears. Hyaline cap किताबों में लिखा पाएगा। इरोजन क्या हो जाता है? इरोजन, सड़ जाना, खराब हो जाना। और अचानक वो जो रेजिलियंस, रिबाउंड एक्शन कार्टिलेज क्या देता है? कुशन इफेक्ट क्या देता है? रेजिलियंस, वो खत्म हो गया। तो इसका टफ सरफेस और ये जो मेम्ब्रेन है वो खुद गद्दे जैसा होता है, लिक्विड कुशन का काम करता है। किसका काम करता है? लिक्विड कुशन का। वो एक साइड दब जाता है। सी द डिफरेंस। अब रिजल्टेंट क्या होगा? एक तरफ ज्यादा वजन पड़ेगा, दूसरी तरफ पड़ नहीं पाएगा, एंड द पर्सन विल एक्सपीरियंस लिगामेंट पेन्स। कौन से पेन्स? क्योंकि चारों तरफ लिगामेंट्स, तो ये लिगामेंट्स खराब होने लगते हैं, एंड रिजल्टेंट पेन, और वो जगह स्वेल रहता है, फूला रहता है, और एक खास तरह के मूवमेंट को दिक्कत पहुंचाता है। तो नी जॉइंट है, डेफिनेटली बैठ गए तो उठने में, या उठे खड़े हैं बैठने जाएंगे, क्योंकि हर बार एक अनइवन प्रेशर पड़ेगा, एंड दैट विल क्रिएट द पेन फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। ये होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। सी द डिफरेंस। हायलिन कैप इरोड्स, रिजल्टेंट एक अनइवन डिप्रेशन पड़ता है सिनोवियल मेम्ब्रेन पे, जिससे एक तरफ खराब हो गया, दूसरी तरफ वजन ही नहीं पड़ता। तो आसपास के लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच होकर दर्द, पेन, लोकल पेन जनरेट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन मतलब ही एक ऐसी कंडीशन जो 4 प्रॉपर्टीज से देखी जाती हैं। तो इम्यून सिस्टम में बताया जाएगा, रूमर है ना, डॉलर, ट्यूमर, सूजन होना, गर्मी रहना उस, अच्छा जॉइंट भी हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है, वहां पर लाल हो जाता है, क्योंकि दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, एक व्यक्ति जिसको भी आर्थराइटिस होगा, आप देखिएगा उसके जो भी जॉइंट्स हैं वहां एक रेडिशनेस रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ब्लड सप्लाई और वो सब कोशिश करेगा उसको बैलेंस करने का, लेकिन कर नहीं पाते। रिजल्टेंट वो एरिया गर्म रहना, पेन रहना, लोकल, हाथ लगाने पे भी दर्द होता है, और मूव करने पे तो दर्द हो गई। तो लार्ज जॉइंट्स, मेन बात इसको ये याद रखना है। और एजिंग इफेक्ट, इंजुरी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, यही डैमेज ऐसा ही होगा, सेम कारण कुछ और। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सबको याद होता जा रहा है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इट्स अ मैल फंक्शन डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर था ये? मतलब एक व्यक्ति की खुद की कमजोरी, शरीर में मैल फंक्शनिंग किसी ऑर्गन पार्ट का, जो खुद उसने एक्वायर किया बढ़ती उम्र के साथ, या फिर इंजरी उसने उसका सामना, वो भी एक्वायर ही हुआ, उसने सामना किया उसका। लेकिन ये जो होना यही है रिजल्टेंट, लेकिन ना उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई बढ़ती उम्र कारण है। उम्र के 22वें साल में, मुश्किल से 30 भी क्रॉस नहीं किया है, हार्डली 25-26, यंग एज, शुड बी मूव हियर एंड देयर विद एन टेंडर इफेक्ट, बट suddenly reported with rheumatoid arthritis. It is an, first of all, autoimmune. कौन सा डिजीज है ये? वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज। क्यों? क्योंकि द इम्यून सिस्टम में भी AMIR, कौन सा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अटैक, बाय प्रोड्यूसिंग RA फैक्टर। क्या बनाते हैं? रिमेटॉइडल आर्थराइटिस फैक्टर, RA फैक्टर, which is a type of IgM। IG कौन से इम्यूनोग्लोबिन होता है? इट्स एन IgM। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। A person suffering from rheumatoidal arthritis when being medically चेकअप हुआ है ना, या ब्लड टेस्ट हुआ, reported with presence of high level of RA factor, the person is sufferer of osteoporosis। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्चुअली ब्लड हिस्टोलॉजी। कौन सा क्वेश्चन? क्योंकि ब्लड की अपनी कॉम्पोजिशन है,
प्लाज्मा, डिसॉल्व सब्सटेंसेस, नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, तो हाउ टू डिटेक्ट एंड जज व्हाट वेदर द पर्सन इज नॉर्मल और एबनॉर्मल विद एनोमली। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर किसी व्यक्ति में सीरम एल्बुमिन लेवल कम है या ज्यादा है, कम है, तो क्या होगा, ओडीमा। क्या होगा, हाथ पैर में सूजन, क्योंकि वही तो है जो ब्लड का वाटर को रिटेन करके रखता है। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? सिम्टोमेटिकली द पर्सन विल एग्जिबिट ओडीमा, यानी हाथ पैर में सूजन या बॉडी की किसी ऑर्गन में, क्योंकि ब्लड में एल्बुमिन की कमी है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा बनता है, लेकिन मैंने ये बात आपको इस टॉपिक के साथ बताया, आपके लिए ये आज के बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन है। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? आर ए फैक्टर, रिम्यूटॉइडल आर्थराइटिस फैक्टर, एंड दैट्स एन एंटीबॉडी आईजीएम टाइप प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। विच सेल्स? बी लिम्फोसाइट्स। खुद ऑटोइम्यून डिजीज क्या है, उसके क्या कंसेप्ट है, मतलब इसको एक बहुत ही सिंपल वे में यहां मेंशन कर दिया जाए, ड्यू टू फेलियर ऑफ, मतलब ये इसकी डेफिनेशन यहां लिखवा रहा हूं। ऐसा होता क्यों है? क्यों एक शरीर का सिस्टम शरीर के दूसरे सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के एक कंपोनेंट पे अटैक क्यों करेगा? ड्यू टू फेलियर ऑफ रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। क्या हो रहा है भाई? सिनोवियल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम सेल्स है, हमारे शरीर के सेल हैं वो, और जो वो एंटीबॉडी बना है वो उसके खिलाफ नहीं बनना चाहिए था। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग एट केमिकल लेवल। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब इम्यून सिस्टम में बताया जाएगा जब हम एमएचसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक्चुअली क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कंसेप्ट ऑफ एमएचसी, और उसी बात को यहां भी लागू कर देंगे कि ऑटो इम्यूनिटी का कारण भी यही है। जहां बॉडी का एमएचसी सिस्टम फेल हुआ, क्या फेल हुआ? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। उसी का ही हेल्प लेकर हमारे इम्यून सेल्स सैनिक की तरह, सोल्जर्स की तरह, डिफेंस यूनिट की तरह पूरे शरीर में पेट्रोलिंग करते हैं, और उनको वो हक मिला हुआ है, उनको वो गवर्नमेंट अथॉरिटी मिला है टू कीप अ चेक ऑन ऑल दी सेल्स, एंड ईच सेल ऑफ आवर बॉडी इज लाइक अ सिटीजन, इज लाइक अ, कुछ आ रहा है कंसेप्ट समझ में? Whenever the defense personnel and so called the law system, जिसका काम है समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, घर किसी के पहुंच गए, सर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, एक रेगुलर चेकअप चल रहा है, नगर निगम कोई भी पहुंच जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। यू माइट बी सोशल एलिमेंट, आपको एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप फेल हो गए हो, सिस्टम इज सिस्टम, सिस्टम अपना कार्रवाई करेगा ही। अरे आ रहा है समझ में? तो कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसा आप बोल लो उस बात को, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? दैट व्हाट हैपेंस। तो इसको मैं वहां अच्छे से समझाऊंगा, टेक्निकली समझाऊंगा। यहां तो मैं कारण बता रहा हूं, मेरा मेन एम है आपको ये याद कराना, होना यही प्रॉब्लम है, यही डायग्राम बनेगा, यही डैमेज होगा, वही तकलीफ होगी, बट द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन क्रिएटेड ड्यू टू एजिंग फैक्टर और इंजुरी, इट इज बीन ड्यू टू द अटैक, मिसअंडरस्टैंडिंग बाय इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यूनिटी रक्षक ही भक्षक बन गया। क्या बन गया? बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वही अटैकिंग सिस्टम बन गया। बाहर से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, विद इन दी बॉडी। किसी को कोई डाउट? क्लियर? मोस्टली अटैक द स्मॉल जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स? स्मॉल जॉइंट्स। ये लार्ज जॉइंट्स, ये देखिए ना, इधर लिखवाया था मैंने, आ रही है मेरी बात समझ में? ये लार्ज जॉइंट्स हैं बड़े, यहां स्मॉल जॉइंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है टो जॉइंट, है ना, ग्रेटर टो, जो पैर का अंगूठा होता है, ग्रेटर टो वहां से शुरू होता है, या फिर आपके जो है थंब जॉइंट, रिजल्टेंट जैसे देखिए हाथ कैसा हो जाएगा, मतलब उंगलियां से मुड़ जाएंगे, मतलब, है ना, इवन कांट होल्ड अ कप ऑफ टी, मतलब ग्रिपिंग पावर खत्म हो जाता है। आ रहा है समझ में? फिक्स हो जाएगा मतलब ऐसा, और इन डिफॉर्म्ड,
मॉर्फोलॉजिकली यहां डिफॉर्मेशन नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? यहां डिफॉर्मेशन हो जाता है स्मॉल जॉइंट्स, और उसके वजह से उस एरिया में मूवमेंट ना के बराबर, यानी सिनोवियल जॉइंट बिकम रादर लिटरली फिक्स्ड जॉइंट। कैसा बन जाता है? बिल्कुल हाथ ही नहीं हिला पाना, मतलब जैसे उंगली में हो गया, एक तो शेप भी बिगड़ जाएगा, इवन कांट होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, गिर जाएगा हाथ से, स्लिप हो जाएगा। क्यों? फोल्ड ही नहीं कर पा रहे। आ रहा है समझ में? सो दैट्स द सिम्पटम। ओके, नेक्स्ट and the last, that is gouty arthritis. Gouty arthritis, डेंजर साइन बना दिया, अलग से याद रखना है। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ, ठीक है, अगेन सिम्टम सेम, सेम डैमेज पॉइंट, सब कुछ ठीक है, बट द रीजन बिहाइंड इज टोटली डिफरेंट। जेनेटिक डिजीज, बट विच टाइप ऑफ, विच कैटेगरी? जेनेटिक डिजीज अलग अलग रीजन से होते हैं। इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी मेन आर कॉमनली सफरर, men are commonly sufferer, यानी ऑल द रूल्स रेगुलेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो आप पढ़ोगे वही यहां लागू होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेनेटिक डिजीज फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मेन आर कॉमनली सफरर, रेयरली फाउंड इन वुमेन, इंडीड एब्सेंट। कैरियर हो सकते हैं, वही वाली बात है, दे आर कैरियर रादर नॉट सफरर। होता क्या है इसमें? ठीक है, रिजल्ट तो समझ में आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस तो समझ में आ रहे हैं कि जॉइंट्स पे असर आएगा, लेकिन ड्यू टू एब्रप्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड या प्यूरिन, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म प्यूरिन, जो बॉडीज में प्यूरिन होते हैं, आ रही मेरी बात समझ में? एडेनिन ग्वानिन जो प्यूरिन्स होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में खराबी आती है ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक ब्लॉक। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? मेटाबॉलिक ब्लॉक, ड्यू टू एंजाइम एब्सेंस बाय द जीन डिफेक्ट। बॉडी में एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म के किसी भी एंड पे एक रुकावट आ जाना, रिजल्टेंट वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शरीर में रुककर एक वेस्ट जैसा बिहेव करने लगे। शरीर का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, लेकिन एनीथिंग अबव एक्सेस नॉट रिक्वायर्ड इज अ वेस्ट फॉर द बॉडी। और जो वेस्ट यहां बनेगा वो तो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, विच वी कांट हैंडल, एनिमल किंगडम कांट मच हैंडल द नाइट्रोजनस वेस्ट। द पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यू टू एब्रप्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, मतलब बनता क्या है? यूरिक एसिड। तो क्रिस्टल्स, मैं थोड़ा सा एब्रप्टली लिख रहा हूं, लेकिन सुन के आप लोग लिखिएगा, देख के ना लिखे, मतलब इधर, क्योंकि राइटिंग में थोड़ा ऐसा फटाफट लिख रहा हूं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मेन आर कॉमनली सफरर ड्यू टू एब्रप्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिट इन सिनोवियल कैविटी, इन सिनोवियल कैविटी। तो आप समझिए, कंकड़ जैसे वो ओवर एक्सेस बन के इन जॉइंट्स में जमा होना शुरू कर देंगे, तो रिजल्टेंट भले ही वहां जितना भी लिक्विड मौजूद हो, डेफिनेटली एक दिन वो ड्राई होना चालू करेंगे, क्योंकि रेगुलर उस फ्रिक्शन, उनके बीच कंकड़ जैसे वो फंसे होंगे, और कोई भी ऐसे जॉइंट्स जहां वो डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा, इट विल क्रिएट फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन के चलते हुए मेम्ब्रेन डेटरॉइट होगा, मेम्ब्रेन डेटरॉइट होगा, सिनोवियल फ्लूइड बनना एक दिन बंद हो जाएगा। सिम्टम सेम आएंगे सब कुछ, बट द रीजन बिहाइंड इज समथिंग डिफरेंट। इट इज इन द जीन पूल एनामोली। कौन सी एनामोली है ये? क्योंकि जेनेटिक डिजीज है, इट ट्रेवल्स डाउन एंड इनहेरिटेड इन द फैमिली, है ना, फ्रॉम फादर टू, फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, वाया थ्रू डॉटर, वाया थ्रू, लिखो जेनेटिक डाउरी, लिखो, इट्स अ जेनेटिक डाउरी। कुछ आया समझ में? एंड ऑल सच कैरेक्टर्स विच ट्रेवल इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न, विच पैटर्न? तो जब पढ़ेंगे जेनेटिक्स में एक्सपीरियंस करेंगे बड़े नजदीक से, कि एक लड़का है एक्स, है ना, मैरिजेबल एज ग्रुप में एंटर करने के बाद सोशली लड़कियां देखना शुरू हो जाता है, 1760 लड़कियां देखी,
पसंद नहीं आया, एक जगह गए, होने वाले ससुर जी कलर ब्लाइंड, बट द डॉटर इज नॉर्मल फिनोटिपिकली, यस और नो। और खुद ससुर जी थोड़ी बायोलॉजी के स्टूडेंट थे कि उनको पता है मी कलर ब्लाइंड, माई डॉटर कैरियर। अरे कुछ आया समझ में? और कैरियर है तो है, कोई स्वीकार करेगा कि? अरे समझ में आ रहा? दिस आर दी सोशल टैबूज, ये है हिच। अब वो लड़का गया देखने XYZ, इतना देखा है ना, उस किस्मत फूटनी थी, मम्मी मम्मी यही, हाँ हाँ बोला खुश, अरे बोला अरे यस यही शादी करेंगे। अरे आया समझ में? हो गई शादी, 3 साल अच्छा बीता, बट जो दामाद था वो भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, MBA करके बड़े किसी MNC में, मतलब मैनेजर पोस्ट में। अरे आया समझ में? उसने कौन सा बायोलॉजी NCERT 12th रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रखा था? अरे मेरी बात आ रही है समझ में? तो बट देन अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 3 साल तक जो है दे डजंट हैव देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड, बट चौथे साल जब इशू हुआ और 3 साल बीता, बच्चा थोड़ा मतलब इतना बड़ा हो गया, पढ़ रहा है, पिताजी आए घर पे रात को, पूछ रहे हैं बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बॉल ब्लू कलर, नो पापा रेड कलर बस द गेम हैज स्टार्टेड। शुरू में डांट फटका, ठीक है, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, है ना, मतलब मैंने कहा ना बायोलॉजी स्टूडेंट थोड़ी है, और है भी तो भूल गए PMT तक तो याद रहता नहीं, वहां कहाँ याद रहेगा। अरे आया समझ में? बस सो दैट्स व्हाट इज गोइंग इन आवर कम्युनिटी, दैट्स द साइंस हम पढ़ रहे हैं। सबको आ रही मेरी बात समझ? दैट्स हाउ द थिंग्स, जीन पूल ट्रेवल करता है ऐसा। तो बस सारा प्यार खत्म उसी दिन, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने समझाया कि ऐसा ऐसा है, कि वो क्या नहीं हमारे फैमिली में किसी को नहीं, डॉक्टर साहब सही दिख रहा है, आप लाल पीले हो, दिख रहा है आप बोले नहीं नहीं ऐसा है मिस्टर सो एंड सो, ऐसा है कि दिस इज अ जेनेटिक डाउरी दिस यू हैव गॉट फ्रॉम योर, है ना, लॉज, इन लॉज साइड। बस सारा प्यार उस दिन खत्म, ससुर जी को ढूंढ रहे, ससुर जी मिल नहीं रहे अरे कुछ आया समझ में? मतलब सेम ये भी ऐसे ही। तो ऑल सच 7 तरह के डिसऑर्डर्स देखेंगे, 4 NCERT में मेंशन्ड है, 7 में बता दूंगा, सब जेनेटिक डिजीज में देखेंगे। ये आ गया समझ में अच्छे से? मतलब इस तरह से मैंने स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट किया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू। क्या शुरू करेंगे?